Assalamu alaikum everyone. This is your course in charge, Dr. Nikat Saraf. Today I would like to start my another session about course Radio News Reporting and Writing. In this session, we will discuss news reading and presentation. Today's topic is news reading and presentation. Okay, come to key concept of presentation. What do you mean by presentation? Is key concept. Presentation is radio's packaging. It hardly matters how good a program's content, how well written, or how excellent its interviews. It comes to nothing if it is poorly presented. It is like taking a beautiful perfume and marketing it in a medicine bottle. Good presentation stems from an understanding of the medium and a basically caring attitudes toward the listeners. The broadcaster at the microphone should consciously care whether or not the listener can follow and understand what he or she is saying. If a newsreader or presenter is prone to the destructive effect of studio nerves, it is best to think outwards, away from yourself. This also helps to counter the complacency of familiarity and is therefore more likely to communicate meaning. Since it is not possible to know the listener personally, adopt the relationship of an acquaintance rather than that of a friend. There are some presenting style factors which I am going to tell you. So, what is the essential for presentation? Presentation is very important factor. ठीक है, either you are going to you are going for news. अगर आप न्यूज़ की presentation दे रहे हैं या whatever the program is, presentation is very necessary कि आप उसको लेके किस तरह चलते हैं. ठीक है, अगर presentation ही अच्छी नहीं होगी तो definitely आपका जो आगे का program है, either आप न्यूज़ present कर रहे हैं या कोई भी program present कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने presenter ने, ठीक है, बहुत ज़्यादा उस पे जो है वर्क करना होता है, होमवर्क करना होता है, उससे रिलेटेड चीज़ों को समझना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, तो फिर आप जाके एक अच्छे प्रेजेंटर बनते हैं. ठीक है, और जब तक आप कितनी भी वेल रिटन हो, आपकी स्क्रिप्ट कंटेंट बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर आप जो है वो कहीं ना कहीं पे लैग कर रहे होंगे. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वे में, रिस्पेक्टफुल वे में किया जाए. The news reader, the news presenter is friendly, respectful, informative and helpful. इसको जो प्रेजेंटर स्टाइल है, ठीक है, ये चार मैंने आपको चीजें बताई हैं. द न्यूज प्रेजेंटर इज फ्रेंडली, रिस्पेक्टफुल, informative and helpful. These four words related to presenter style.
You know you have something to offer the listeners, but this advantage is not used to exercise a knowledge superiority or by assuming any special authority. The relationship is a horizontal one. We refer to putting something across, informing the listener. We do not presume on the relationship, but work as it, always taking the trouble to make what is being said interesting and sound interesting by ourselves being interested. In oral communication, information is carried on two distinct channels. Number one is content, what is said, and style, how it is said. They should both be under the speaker's control and to be fully effective. One should reinforce the other. Due, however, to stress, it is not always easy, for example, to make a light point lightly without intention. It is possible to sound serious, even urgent, and the effect of making a light point in a serious way is to convey irony. The reverse, that of making light of something serious, can sound sarcastic. The problem, therefore, is how to appear natural in a tense situation. It may be useful to ask yourself, how should I come over? The following points may be helpful. Number one, the most important point is to be sincere. What it's mean? Say what you really feel and avoid acting. ठीक है, प्रेजेंटर सीरियस सिंसियर कब होते हैं व्हेन ही रियली फील एंड अवॉइड एक्टिंग. आप जो फील कर रहे हैं, ठीक है, आपने नेचुरल वे में अपनी जो भी आप चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं अपने नेचुरल में बोलना है, आपने कोई एक्टिंग नहीं करनी है. नेक्स्ट पॉइंट, टू बी फ्रेंडली. आपने बिल्कुल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में जो है अपना पॉइंट्स लेके चलने हैं. यूज एन ऑर्डिनरी टोन ऑफ वॉइस एंड बी केपेबल ऑफ टॉकिंग with an audible smile, a wild jargon, and specialist or technical language. आप फ्रेंडली किस तरह रहेंगे अपने जो है लिसनर से, जब आप टेक्निकली लैंग्वेज जो है वो अवॉइड करेंगी, जार्गन अवॉइड करेंगे. आप एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ऑर्डिनरी टोन के साथ जो है आप अपने जो है लिसनर से बात करेंगे. एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उसी वक्त क्रिएट होगा जब आपका लिसनर जो है और आपकी जो है मेंटल लेवल एक हो, वर्ड्स जो हैं उसकी मीनिंग उसके जहन में हो, और इतने आप मुश्किल और टेक्निकल वर्ड यूज ना करें कि वो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर ना बिल्ड हो सके. The third most important thing is to appear human. Use normal conversation language. नॉर्मल कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, ठीक है, आपने नॉर्मल कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में बात करनी है, लाइक स्टोरी टेलिंग. अवॉइड आर्टिफिशियल स्टाइल. एडमिट व्हेन यू डू नॉट नो द आंसर. ठीक है, आपने कोई इसमें एक्टिंग नहीं करनी है, कोई बहुत ज्यादा आपने इस तरह नहीं बताना है. अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो ठीक है, आपने उसको एक बिल्कुल सिंपल वे में उसको एडमिट करना है. टू बी कंसिडरेट. Demonstrate the capacity to understand views other than your own. आपने एक रिस्पेक्टफुल वे में चलना है, क्योंकि प्रेजेंटर के लिए मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंटर होता है वो फ्रेंडली भी होता है, रिस्पेक्टफुल होता है, इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल. दीज 4 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू प्रेजेंटर. और ठीक है, वो रिस्पेक्टफुल का मतलब इस या जो हम मायने यहाँ पे ले रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड व्यूज अदर देन योर ओन. ठीक है, दूसरों के व्यूज को भी अहमियत देंगे. ठीक है, आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि यू आर राइट, ठीक है, आई एम राइट वाला आपने नहीं करना है. आपने जो है दूसरों के व्यूज को भी इसमें अपने जो प्रोग्राम है या तबसरा है व्हाटएवर, उसमें दूसरों की राय को भी बहुत अहमियत देनी है और उसको रिस्पेक्ट देनी है. ठीक है, ताकि वो फिर जो है एक
फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पे क्रिएट हो। टू बी हेल्पफुल, ऑफर यूजफुल कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिकल एडवाइस, कि आपने कंस्ट्रक्टिव एडवाइस देनी है तभी वो हेल्पफुल होगी फॉर योर लिसनर्स। ठीक है, आपने सिर्फ क्रिटिसिज्म और ये नहीं करना है, अपने किसी भी आप जो भी है, आपका न्यूज़ है, आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपने कंस्ट्रक्टिव वे में अपने जो व्यूज़ हैं वो अपने लिसनर्स तक देने हैं। टू अपीयर competent, demonstrate an appreciation of the question and ensure accuracy of answer. अवॉइड इररेलेवेंट डिस्कशन। ठीक है, आपने कॉम्पिटेंट होके बात करनी है, टू दी पॉइंट बात करनी है, जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को आपने अपने माइंड में रख के रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंटर के लिए बहुत ज़रूरी है। द मोस्ट वैल्यूएबल क्वालिटी इज क्रेडिबिलिटी। Only when the listener believes the person is speaking will they be prepared to take notice or act on what is being said. For this reason, style is initially more important than content. Again, आप जो है बहुत ठीक है वीक से वीक कंटेंट को जो है प्रेजेंटर अपनी प्रेजेंटिंग स्टाइल से, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो उसको लोगों के लिए प्रेजेंटेबल कर सकता है, अट्रैक्टिव कर सकता है। ठीक है, आप लोगों को इन्वॉल्व करें, लोगों की राय को अहमियत दें, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आप क्रिएट करें। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आप इस तरह करेंगे जब आप उनके लेवल पे आके बात करेंगे। ठीक है, आपके जो वर्डिंग्स होंगे वो उनकी मेंटल लेवल से मैच कर रही होंगे। ठीक है, आपने रिस्पेक्टफुल वे में चलना है, रिस्पेक्ट करना है, उनकी राय की अहमियत देनी है। तो ये जो चीज़ें एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में, लाइक स्टोरी टेलिंग, आप बात कर रहे हैं जिस तरह फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उनके लहजे में, उनके स्टाइल में आके बात की। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फॉर प्रेजेंटर। अच्छा, और क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं प्रेजेंटर के लिए? एक तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रेंडली होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। अच्छा, न्यूज़ रीडिंग टेंड्स टू बी more formal than a music program, but there is room for a variety of approaches. Whatever the overall style of the station, governed by its basic attitude to the listener, it should be fairly consistent. While the sociologists may regard radio as a mass medium, the person at the microphone sees it as an individual communication, talking to someone, thinking of the listener as one person. Talking to someone, thinking of listener as one person is very important for radio. Why? Because radio diverts people from their problems and anxieties, providing relaxation and entertainment. It reduces feelings of loneliness, creating a sense of companionship. Radio is as we all know, radio is the supplier of local, national or international news and establishes for us a current agenda of issue and events. It satisfies our personal curiosity about what is going on. It offers hope, inspiration to those who feel isolated within a restrictive environment or where their own media are manipulated. It helps to solve problems by acting as a source of information and advice. It can do this either through direct personal access to the program or in a general way by indicating sources of further help. It enlarges personal experience, stimulating interest in previously unknown topics, event, or people. It promotes creativity and can point towards new personal activity. It meets individual needs for formal and informal education. It also contributes to self-knowledge and awareness, offering security and support
It enables us to see ourselves in relation to other and link individuals with leaders and experts. It guides social behavior, setting standards and offering role models with which to identify. It aids personal contact by providing topics of conversation through shared experience. And of course, it enables individuals to exercise choice, to make decisions and act as citizens, especially in a democracy through the unbiased dissemination of news and information. These are very important factors of news reading. Another factor which is very important for presenter is the presenter does not shout. There is no room for shouting. For example, if you are half a meter from the microphone and the listener is a meter from the radio, the total distance between you is 1.5 meters. What is required is not volume, but an ordinary clarity. Too much projection causes the listener psychologically to back off. It distances the relationship. By dropping his or her voice, the presenter adopts the confidential or intimate style more appropriate to the closeness of late night listening. So, it is very important for presenter to don't shout. The presenter does not shout. There is no room for shouting for presenter. The simplest way of getting the style, projection and speed right is to visualize the listener sitting in the studio a little way beyond the microphone. The presenter is not alone reading but is talking with the listener. This small exercise in imagination is the key to good presentation. The script must not come between the broadcaster and the listener. The listener should feel that he or she is being spoken to, not read to. The script needs to be written for talking aloud and the vocal inflections and stresses kept as natural as the broadcaster's own speech. तो आपने प्रेजेंटर को हमेशा जो है नेचुरल वे में चलना है, एक्टिंग नहीं करनी है, शॉटिंग नहीं करनी है, आपने बिल्कुल नेचुरल वे में जिस तरह आप बोलते हैं अपनी उसी स्टाइल में आपने अपने लिसनर्स के साथ, ठीक है, आप जो भी अपना प्रोग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपने सिर्फ ये जो है कॉमननेस आपने ये देनी है कि आप अपने लिसनर से बात कर रहे हैं, इन अ फ्रेंडली टोन में आप कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुल मैनर में कर रहे हैं और जो है ये जो स्टाइल है प्रेजेंटर का, ठीक है, ये जो है ये आप लिसनर्स के साथ जो भी आपके लिसनर हैं डेफिनेटली फिर उनको ये स्टाइल अट्रैक्ट करेगा. तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू presenter style. Okay, come to next, the 7 P's. There are the some 7 P's, the basics of good presentation. These 7 P's are known as the basic of good presentation. Posture, number 1 is posture, projection, pace, pitch, pause, pronunciation, and personality. These 7 P's are very important for presentation. Now, what do you mean by posture? Posture से आप क्या मुराद लेते हैं, ठीक है, this is very important for presenter के वो उसका जो है posture, ठीक है, उसको help कर रहा हो. Posture means how you hold your body. We are definitely talking about static posture. Means you are not moving when sitting. So आपका posture कैसा होना चाहिए presenter का कि वो comfortable feel करे और वो जो अपनी presentation दे रहा है या present कर रहा है या तो किस तरह वो comfortable feel करता है.
Is this sitting position comfortable to allow good breathing and movement? सिटिंग पोजीशन आपकी कंफर्टेबल होनी चाहिए. अगर जो प्रेजेंटर कंफर्टेबली सिट नहीं होगा तो डेफिनेटली वो अपनी, ठीक है, डेफिनेटली फिर वो उसकी वॉइस में भी वो उसका पॉस्चर ठीक नहीं होगा तो डेफिनेटली वो ठीक है रिप्रेजेंट सही नहीं कर सकेगा, ठीक है, ना सही अदायगी कर सकेगा, ना सही तौर पे अपने प्रोग्राम को लेके चल सकेगा. तो मूवमेंट, ठीक है, ब्रीदिंग मूवमेंट आपकी सही होनी चाहिए. Cramped or sloping posture does not generally make for an easy alertness. ठीक है, ये जो आपका बैठने का स्टाइल है, ठीक है, क्रैम्प नहीं होना चाहिए और आपका जो पोजीशन है, ठीक है, वो स्लॉचिंग मीन्स to sit with the shoulders hanging forward and the head bent slightly over so that you look tired or bored. ठीक है, आपने इस तरह नहीं बैठना है कि आपने एक स्लॉचिंग वाला आपका वो हो कि आप बड़े एक बोरिंग और टायर्ड वे में बैठे हों. ठीक है, अगर आप टायर्ड होंगे, आपका पोस्चर ठीक नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी प्रेजेंटेशन भी ठीक नहीं होगी. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ पोस्चर. तो आपको अपने पोस्चर का जरूर ख्याल करना है व्हेनेवर आप कोई प्रेजेंट कर रहे हो, एज ए रिप्रेजेंटेशन आप कुछ दे रहे हो. देन कम टू प्रोजेक्शन मीन्स थ्रो. आप किस तरह थ्रो कर रहे हैं, जो भी है आपके पास, आपकी जो नॉलेज है, आपके जो वर्ड्स हैं. Is the amount of vocal energy being used appropriate to the program? ठीक है, आपका प्रोग्राम की नौयत क्या है, इस पे ये डिपेंड करता है कि आप अपने अल्फाज को, अपनी एनर्जी को, वोकल एनर्जी को किस तरह यूज करें. बहुत एंथुजियास्टिक कोई प्रोग्राम है, कोई है तो और उसमें आपकी आवाज बिल्कुल डल है, निकल ही नहीं रही है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली वो एक जो प्रेजेंटेशन वाला जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्ड नहीं होगा. ठीक है, या कोई सैड प्रोग्राम है तो डेफिनेटली उसमें आपकी जो वोकल एनर्जी है वो डिफरेंट होगी. कोई आप जो है कोई एंथुजियास्टिक रिलेटेड टू कोई ऐसा नेशनल आपका कोई बहुत बड़ा इशू है, कोई अचीवमेंट है, तो उसमें आपका जो है थ्रो ऑफ योर वॉइस, वोकल एनर्जी आपकी डिफरेंट होगी. Then come to pace. Pace means rate. आपकी क्या rate है of your voice? Is the delivery correct? Too high or a word rate can impair intelligibility or cause errors. Delivery correct होनी चाहिए, ठीक है, आपकी रफ्तार जो है वो बिल्कुल, ठीक है, उसका pace आपने उस पर ध्यान देना है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है. ठीक है, रेट परफॉर्मेंस आपकी क्या जा रही है, डिलीवरी आपकी करेक्ट हो रही है कि नहीं. टू हाई वर्ड रेट अगर है आपके, और ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने कॉपी अगेन होएगा क्या सिचुएशन है, क्या टॉपिक है, किस चीज को आप लेके चल रहे हैं. तो आप पेस ऑफ योर वॉइस, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि आपने वो उसको अपने जो भी है टॉपिक है उससे मैच करना है. देन कम टू पिच. पिच मीन्स द हाईनेस और लोनेस ऑफ टोन. पिच मीन्स पिच इज द हाईनेस or lowness of tone. People tend to raise and lower vocal pitch to accompany changes in volume. They may also raise the pitch when they are nervous or lower the pitch when they are trying to be forceful. So pitch means the highness or lowness of your tone. It's also known as vibration of sound waves. Pitch means sounds are highly or lower in pitch. Is there a sufficient rise and fall to make the overall sound interesting? Too monotonous a note can quickly become very tiring to listen. However, animation in the voice should be used to convey natural meaning rather than achieve variety for its own sake. So even if the pitch varies, it is forming a predictable repetitive pattern. So always stress pitch of your voice. It is also very important for presenter. Then come to next P, which is pause. Too much pause also not good. Pause are suitable silences used intelligently
to separate ideas and allow understanding to take place. Pause again are suitable silences. You have to use it intelligently to separate ideas and allow understanding. But too much pause also not good. Presenter must know about the pause, कि उसको कहाँ pause देना है, कहाँ उसने ज़्यादा पॉज देना है और कहाँ कम पॉज देना है. तो ये चीज़ जो है वो प्रेजेंटर के नॉलेज में होनी चाहिए. द नेक्स्ट P is pronunciation. Pronunciation. Can the reader cope adequately with worldwide names and places? If a presenter is unfamiliar with people in the news or musical terms in other language, it may be helpful to teach the basic of phonetic guidelines. Pronunciation is also very important. Presenters के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस पर थोड़ा होमवर्क करके आएँ. अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन उनके लिए सही नहीं है तो डेफिनेटली उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि जो भी आप लिसनर होता है, ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन की गलती ऑन एयर में आपको पता है कि आपके पास एक ही चांस होता है अपनी बात अपने लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए. तो अगर वहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन में प्रोनाउंसिएशन आपने गलत कर दिया है तो डेफिनेटली ये जो है बिल्कुल हार्मफुल होगा फॉर न्यूज़ रीडर योर प्रेजेंटेशन. ठीक है, ये ऐसी मिस्टेक है जो वॉट एवर द कॉज लिसनर ब्लेम्स द न्यूज़ रीडर और द प्रेजेंटर. ठीक है, कोई भी कॉज हो आपको, ठीक है, अगर सही लिखा फॉर एग्जाम्पल कंपोज सही नहीं है या पेपर में लिख रहे हैं राइटिंग सही नहीं है तो वो लिसनर जो सुन रहा है, ठीक है, वो यही समझेगा कि न्यूज़ रीडर या प्रेजेंटर की ये फॉल्ट है, आइदर वो कोई टेक्निकल फॉल्ट हो वॉट एवर. तो आपने इस पे बहुत ज़्यादा फोर्स देना है. देन द लास्ट इज पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटर को इसके लिए जो है एक एनर्जेटिक वे में काम करना पड़ता है. द सम टोटल ऑफ ऑल दैट communicates from microphone to loudspeaker. How does the broadcaster come over? What is the visual image? Is it appropriate to the program? The rate of delivery depends on the style of the station and the material being broadcast. Inter-program or continuity announcement should be at the presenter's own conversational speed. For example, news reading at 160 to 200 words per minute, but slower for short wave transmission. Commentary should be at a rate to suit the action. If a reader is going too fast, it may not help simply to slow down. This is likely to make the voice sound and over careful. What is required is to leave more pause between the sentences. That is when the understanding takes place. It is not so much the speed of the word that can confuse, but the lack of sufficient time to make sense of them. So, आप जो हैं ये पर्सनैलिटी से आपके रिलेटेड है कि आपने किस तरह अपनी बात को लिसनर तक पहुंचाना है. आपने एक एनर्जेटिक वे में, ठीक है, एक बहुत लाइवली पर्सनैलिटी अपने आप को बिहेव करते हुए अपने प्रोग्राम को लेके चलना है. इसमें अगेन आपका आ जाता है जो प्रेजेंटर होता है वो जो है उस वो फुल ऑफ नॉलेज भी होना चाहिए. ठीक है, पर्सनैलिटी आपकी जो है उसी वक्त इम्प्रेसिव होगी जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू करंट. ठीक है, आप कोई भी करंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं बट आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. आपके पास करंट इशू से रिलेटेड सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू होने चाहिए. ठीक है, तो जब भी आपकी जो है पर्सनैलिटी, ठीक है, एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी कि जिस पे लोग जो है बिलीव कर सकेंगे उसकी जजमेंट पे, ठीक है, उसकी क्वालिटीज पे वो कन्विंस कर लेगा. ठीक है, आपकी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी होगी, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, आपके पास वर्ड्स होंगे, वोकैबुलरी अच्छी होगी, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, यू नो हाउ टू टॉक, कहाँ पे आपने पॉज करना है, पिच ऑफ योर वॉइस, रेट ऑफ योर वॉइस. ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कौन करती हैं. वॉल्यूम, ठीक है, आपको वॉल्यूम क्या होगा, लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ योर टोन, या आपने किस तरह इसको लेके चलना है. रेट ऑफ योर वर्ड, रेट इज द स्पीड एट विच अ पर्सन स्पीक्स. ठीक है, तो आपने ये सारी चीजों को करते हुए लेके चलना है. तो इट मीन्स कि आप एक गुड प्रेजेंटर हैं.
तो आई थिंक दिस इज, ये काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटर के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। नाउ कम टू नेक्स्ट key concept of news reading. The first demand placed on the news reader is that he or she understands what is being read. ठीक है, जो न्यूज रीडर है वो जो पढ़ रहा है उसके लिए उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, विदाउट आप रीडिंग करेंगे, लेकिन अगर आप चीज आपके सामने है, न्यूज आपके सामने है, आपने उसको रीड कर लिया लेकिन आप समझ के नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये यहाँ पे लैग करेगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग रीड। यू कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू कम्युनिकेट सेंसिबली इफ यू हैव नॉट fully grasp the sense of its yourself. The reservation express later about agency news material. There is a little place for the newsreader to pick up a bulletin within 30 seconds to go and hopes to read it word perfect. So be better than punctual, be early. Neither is technically faultless reading the same thing as communicating sense. A newsreader should be well informed and have an excellent background knowledge of current affairs in order to cope when changes occur just before a bulletin. Take time to read it. Take time to read it out loud beforehand. This provides an opportunity to understand the content and be aware of pitfalls. ठीक है, this is very important for a news reader. You must have the knowledge of current affairs. ठीक है, एक तो वो जो पढ़ रहा है उसको पता होना चाहिए वो क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने सिर्फ बेसलेस रीडिंग नहीं करनी है, आपको उसका पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तभी जो आपके अल्फाज हैं, पिच ऑफ योर वॉल्यूम, ठीक है, आपके वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे ठीक है आपकी नॉलेज से बहुत ज़्यादा वो इन पे जो है डिपेंड कर रहे होते हैं। पिच ऑफ योर वॉल्यूम, पिच ऑफ योर वॉइस, वॉल्यूम ऑफ योर वॉइस, रेट ऑफ योर वॉइस, क्वालिटी ऑफ योर वॉइस। तो जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, दूसरा ये कि आपके पास जो न्यूज़ रीडर होता है उसके पास करंट अफेयर्स की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी अगर कोई भी मसला हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको टेक्निकली कोई मुश्किल हो रही हो, तो अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली आप सही वर्डिंग्स के साथ उस चीज़ को आगे लेके चले जाएंगे एज ए न्यूज़ रीडर। तो करंट अफेयर से सिर्फ रीडिंग करना ये काम नहीं है न्यूज़ रीडर का। न्यूज़ रीडर का काम ये कि रिलेटेड टॉपिक जो है रिलेटेड टू योर इन्वायरमेंट आपको सब चीज़ें आपकी नॉलेज में होना चाहिए। Then next, there may be problems of pronunciation. Against pronunciation problem यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। आपने pronunciation पे अपनी पहले बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपने सारी जो है जितनी भी आपके पास वेल रिटन है, आपके पास न्यूज़ रीडिंग के जो भी मटेरियल है, आपने उसको पहले से ही प्रोनाउंस करना है। इसमें आपने रीडिंग करनी है। ठीक है, रेडियो न्यूज़ कास्टर के लिए, न्यूज़ रीडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप पहले से ठीक है आप चीज़ें पढ़ के जाएं, आपने इसमें होमवर्क किया हुआ, तभी आपकी रीडिंग जो है सही होगी प्रोनाउंसिएशन के लिए खास तौर पे। द फैक्ट ऑफ मैटर इज दैट इन द इवेंट ऑफ अ मिस्टेक ऑन द ईयर फॉर व्हाटएवर कॉज द लिसनर ब्लेम्स द न्यूज़ रीडर। ठीक है, लिसनर्स हमेशा न्यूज़ रीडर को ही ब्लेम करेंगे, तो आपने इस पे जो है बहुत सोच समझ के बोलना होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ नाम ऐसे होते हैं, ठीक है, अगर आपने वो आप जल्दी में बोलेंगे तो बाज़ दफ़ा आपके पास इतनी कमांड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज प्रेसिडेंट है, ठीक है, आप इसमें लिखते हैं, इसको चाइनीज प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। ठीक है, अब आपने इसमें ZXI लिखा है, तो जी आप इसको जी भी पढ़ सकते हैं, जी जिनपिंग, तो ये सही नहीं है, ये XI हमेशा इसको प्रोनाउंसिएशन जो होती है शी होती है, शी जिनपिंग। आप इसमें जब बोलेंगे तो आपने इसको इस तरह प्रोनाउंस करना है, स्पेशली जब बड़े लीडर्स के नाम ले लेते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो चाइनीज लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, तो आपने इसमें पहले से ठीक है आपको लिख के भी रखना होता है। ठीक है, आप लिख के रखें तो आपने किस वर्ड पे फोकस करना है, उसको किस तरह प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ आपने इसको बताना है।
ठीक है, जिस तरह न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर है जसिंडा आर्डर्न, ARDERN, ठीक है। आपने अगर आपको पास ये लग रहा है कि आप इंग्लिश में सही तरह नहीं प्रोनाउंस कर सकते तो आप उसको उर्दू में भी लिख लें, ठीक है। लेकिन आपने नामों के प्रोनाउंसिएशन पे बहुत फोकस करना है। अगर आप सही नहीं पढ़ेंगे तो ये हमेशा आप ही को ब्लेम जाएगी। The person at the microphone therefore has a right to expect a certain level of service. This means a well-written and properly set out bulletins, accurately composed, arriving a few minutes before it is needed. It's then possible to check to see if the lead story has changed and scan it quickly for any unfamiliar names, pick out figures and dates to make sure they make sense. In the actual reading, your eyes are a little ahead of your speech, enabling you to take in groups of words, understanding them before passing on their sense to the listeners. The ideas of news agencies, news or syndicate news is excellent, but it should not become the cause nor be made the excuse for poor microphone delivery. In the studio, the newsreader sits comfortable, feeling relaxed, breathing normally, and taking a couple of extra breaths before beginning. This is very important and necessary for a news reader. ठीक है, वो बहुत कंफर्टेबल हो न्यूज़ पढ़ने से पहले, ठीक है। वो उसकी जो सांस का उतार चढ़ाव है नॉर्मल हो, ठीक है। बेहतर है कि आप अपनी पहले ही, ठीक है, इसको नॉर्मली ब्रीदिंग को सही कर लें और फिर न्यूज़ रीडिंग स्टार्ट करें, ठीक है। आपको देर हो गई, भागते दौड़ते आ रहे हैं और आप न्यूज़ रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप कभी भी अच्छी न्यूज़ रीडिंग नहीं कर पाएंगे। पहले आप अच्छी न्यूज़ रीडिंग कर लें, देन आप स्टार्ट करें अपनी जो है न्यूज़ रीडिंग की परफॉर्मेंस। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिकलिटीज ऑफ न्यूज़ रीडिंग, ठीक है। प्रैक्टिकली आपने क्या करना है, किस चीज को न्यूज़ रीडर को लेके चलना है, ठीक है। आपने न्यूज़ रीडर के लिए कुछ यहाँ पे 8-10 पॉइंट्स हैं कि प्रैक्टिकली न्यूज़ रीडर बिफोर न्यूज़ रीडिंग इन चीज़ों को फॉलो करेगी तो एक अच्छी न्यूज़ रिप्रेजेंट वो कर सकेगी। एक अच्छा न्यूज़ कास्टर जो है हमेशा न्यूज़ रीडिंग से पहले इन चीज़ों को फॉलो करता है। नंबर 1 इज डोंट ईट स्वीट्स और चॉकलेट बिकॉज शुगर थिकनेस दी सलाइवा। आपने न्यूज रीडिंग से पहले या प्रेजेंटेशन से पहले प्रेजेंट्स चॉकलेट या कोई मीठी चीज मुंह में नहीं रखनी है। आप ये प्रैक्टिकल भी कर लीजिएगा, कोई मीठी चीज खाने से जो होता है एक थिकनेस आ जाती है आपके सलाइवा में, तो आपकी जो वॉल्यूम की जो पिच है और उसका वोकल आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। Always have a pen or pencil with you for marking alterations, corrections and emphasis, ठीक है। आपने ये हमेशा अपने पास एक पेन रखना है जहाँ पे ये चीजें आप मार्क करते रहें। If you wear them, make sure you have your own glasses. अगर आप, ठीक है, ग्लासेस अगर आप लगाते हैं तो आपके पास होने चाहिए। डोंट वेयर एनीथिंग दैट कुड नॉक द टेबल और रैटल, बैंगल, cufflinks, ठीक है, शोर नहीं होना चाहिए। प्लेस अ ग्लास ऑफ वाटर नियर एट एंड, ठीक है, आप रख लें। कभी हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े, बाज दफा आप बात करते करते आपका जो गला जो है खुश्क हो जाता है, तो बेहतर तो ये क्या पहले थोड़ा सा पी के ही बैठें पानी, बट अगर कोई बात नहीं आपके पास थोड़ा सा होना चाहिए इन केस आपको जरूरत पड़े तो आप वो पी लें। रिमूव any staples or paper clips from the script and separate the pages so that you can deal with each page individually. Make sure you have the whole script. Check that the pages are in the right order, the right way up. Give yourself space, especially to put down the finished pages. Don't bother to put them face down. ठीक है, पढ़ते जाओ, पेजेस रखते जाएं, तो ये एक सही तरह आपका काम हो जाएगा। Check the clock, cue light, headphones for talk back and cue program and the mic. Check your voice level. Where timing is important, time the final minute of the script, 180 words per act, 8 lines, and 8 lines of composed lines, and mark that place. You need to be at the point with a minute left to go and may have to drop items in order to achieve this. Once
started, don't worry about your own performance. Be concerned that you are really communicating to your imagined listener just beyond the mic. If reading from a computer screen connected to a local network system, make sure it is secure and that a colleague on other terminal is not inputting to the news while you are broadcasting. This is very important. Then vocal stressing. You must know how to stress the different words, the degree or emphasis laid on a word, and this is totally depend upon the presenter. So these are the some important points for news presenter, news readers. So I think this is all about your topic, news reading and presentation. I think आपने काफ़ी चीज़ें इससे रिलेटेड पढ़ ली हैं, इसको दोबारा सुनिएगा, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें न्यूज़ रीडिंग की जो इन प्रैक्टिस हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा. देन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट सेशन में मैं फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा काफ़ी टॉपिक जो है कवर हो गया है, कुछ टॉपिक्स रहते हैं, तो आप इसको केयरफुली सुने, इसको जो है इन प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश करें. देन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ अगेन मैं आपको आऊँगी. टिल देन अल्लाह हाफिज़.